Students, we have already done in-text questions. So now we will start with NCERT exercise and only numerical part we'll be doing. Now first numerical is question number 4, which says the concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass. Now what does this 68% means? That means WB is 68 grams and WA will be 100 minus 68, right? Now what should be the molarity of the sample? Capital M निकालना है and density is also given to you. Now this is straightforward application of the formula. WB दिया है, WA निकाल लिया, density is given है, formula is WB by MB 1 upon V into 1000. Why 1000? Because density is in gram per ml. So volume will be in mls. तो इसलिए 1000 लगाया. Simple. अब यहाँ पर you don't know the volume. तो वॉल्यूम को कहाँ से निकालेंगे हम? डेंसिटी से. तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. वहाँ से वॉल्यूम निकल गया. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? क्योंकि हमें परसेंटेज में दिया हुआ है. वेन एवर द कॉन्सेंट्रेशन इज इन परसेंटेज, तो वी कैन टेक टोटल मास टू बी 100. क्योंकि परसेंटेज में टोटल इज 100, तो मास इज 100. द यूनिट इज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, which says a solution of glucose in water is labeled as 10%. Again 10% का मतलब WB is 10 grams, WA क्या होगा? 100 minus 10, 90 grams. What will be the molality? Molality निकालना है small m, and mole fraction of the each component in the solution. That means chi A, chi B दोनों निकालना है. If the density of solution is this much, density is given, what shall be the molarity of the solution? Molarity निकालना है. Again, molality is very simple, straightforward application of formula. WB by MB into 1 upon WA into 1000. Why 1000? Because WA is in grams. Okay, and unit is molar. Now, chi A is number of moles of A upon Na plus Nb. You can break down and everything is given to you. You can get chi A and no unit for chi A. Then chi B you can calculate by using the formula 1 minus chi A. Next is molarity. Again, molarity में everything is given except volume. तो वॉल्यूम कहाँ से निकालेंगे? बाय मेकिंग यूज ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. अगेन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मास ओवर हियर? बिकॉज इट इज इन परसेंटेज 10%, तो मास ऑफ टोटल सोल्यूशन इज 100. So you will take it 100 and the unit is capital M. Now next question is your question number 6. ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है एंड थोड़ा सा डिफरेंट है एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा. See how many ml of 0.1 molar HCl is required. मतलब क्या निकालना है? How many ml मतलब ml is a unit of volume. So you have to calculate volume of HCl. And molarity given HCl की 0.1 m is required to completely react with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3. That means total amount जो mixture का है हमारे पास वो 1 gram है. Right? It is 1 gram. Then it says having equimolar amounts of both. That means दोनों का number of moles, equimolar का मतलब number of moles are same. तो यहाँ पर number of moles of sodium carbonate is equal to number of moles of sodium bicarbonate. अब इसमें because total amount is 1 gram, तो हम किसी एक को x मान लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट को या सोडियम बाइकार्बोनेट को. अगर हम सोडियम कार्बोनेट को x मान रहे हैं तो बाइकार्बोनेट will be how much? 1 minus x grams. And now using the relationship that has been given to us, number of moles of sodium carbonate is equal to number of moles of NaHCO3. इसको ब्रेक करो. n का फॉर्मूला क्या होता है? W upon m. तो W of Na2CO3 upon molecular mass of Na2CO3. Similarly over here put the values and from there you can solve for value of x. अब x आ जाएगा तो उसमें से आप n भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स एंड दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा. वाई? बिकॉज इक्विमोलर है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आर सेम. So same number of moles. Now you have to see the reaction. What reaction is taking place between sodium carbonate and NaHCO3? Na2CO3 plus HCl give rise to this much, and if you balance it, you get 2. That means 2 number of moles of HCl are required to completely react with sodium carbonate. Similarly, sodium bicarbonate में अगर equation लिखेंगे तो you get after balancing 1 mole of HCl. That means total moles of HCl required is how much? 2 plus 1, 3 moles. So total number of moles of HCl required is equals to 3 moles. अब 1 mole की वैल्यू कितनी थी? This much. तो 3 moles की वैल्यू कितनी होगी? Multiply by this. तो total number of moles of HCl required is this much. Now we will use the formula of molarity. किसका molarity? ये HCl की लेंगे हम. Molarity, number of moles of HCl upon volume of HCl.
Now see, you have 0.1 नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिया हमने जो 3 मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ से तुम्हारा वॉल्यूम आ गया लीटर्स में, बिकॉज मोलारिटी में वॉल्यूम इज इन लीटर. यू कैन स्ट्रेट अवे रिपोर्ट द आंसर इन लीटर और यू कैन कन्वर्ट इन टू ml. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 7 which says a solution is obtained by mixing 300 grams of 25% solution. Now what do you mean by 300 grams of 25% solution? जैसे मैथ्स में करते हैं ना, 300 ग्राम्स ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, एंड परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100. तो सिमिलरली यहाँ पर हम करेंगे सॉल्यूट इन 300 ग्राम्स ऑफ 25% सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 300 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डाल दिया हमने एंड परसेंटेज की जगह अपॉन 100 करते हैं, तो डैट कम्स आउट टू बी 75. सिमिलरली दूसरे का भी ले लेंगे हम, सॉल्यूट इन 400 ग्राम्स ऑफ 40% सोल्यूशन, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया और परसेंटेज की जगह 100 आ गया, राइट. सो यहाँ से आ गया 160 ग्राम. नाउ हम देख लेंगे टोटल मास ऑफ द सोल्यूट टेकन बिकम्स, दोनों को ऐड करके इतना टोटल सोल्यूट लिया आपने, एंड टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ जो हमने लिया था स्टार्टिंग में, 300 एंड 400. तो 300 प्लस 400 इज 700. एंड हमें निकालना क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन. उसमें तुम्हारा सोल्यूट भी आता है और सॉल्वेंट भी आता है, तो दोनों का मास परसेंटेज निकालना है. एंड कैसे निकालेंगे, जैसे आप मार्क्स की अपने परसेंटेज निकालते हैं, कितना सोल्यूट लिया अपॉन सॉल्वेंट इंटू 100. सोल्यूट तुमने लिया 235 अपॉन 700 इंटू 100, एंड सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, आउट ऑफ 100 माइनस दिस इज योर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट. नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. See, an antifreeze solution is prepared from 22.5 grams of ethylene glycol. Now what is 22.5 gram? This is solute. तो WB is 22.6 grams of ethylene glycol. फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यू कैन कैलकुलेट MB फ्रॉम हेयर, दैट इज 62 ग्राम पर मोल इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर. इसका मतलब क्या है, WA. तो WA इज 200 ग्राम्स ऑफ वाटर. कैलकुलेट मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी क्वेश्चन मार्क है, और डेंसिटी दे रखा है और मोलैलिटी भी निकालना है इसमें, राइट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. मोलैलिटी तो सिंपली आ जाएगा बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन फॉर्मूला WB बाय MB 1/WA इंटू 1000 यूनिट इज मोलैलिटी. मोलैलिटी भी अब तो तुम्हें निकालना आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पर एक ही चीज़ अननोन रहती है, दैट इज वॉल्यूम. और वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय मेकिंग यूज ऑफ डेंसिटी का फॉर्मूला. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. नाउ यहाँ पर हम M क्या लेंगे, देखो बाकी क्वेश्चन में अभी तक जो हमने करे उसमें हमने 100 लिया है. वाई 100, बिकॉज उसमें परसेंटेज में सोल्यूशन दिया हुआ है, बट यहाँ पर परसेंटेज में नहीं है. यहाँ पर तुम्हें दिया है WB एंड WA अलग अलग दिया हुआ है, एंड टोटल मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके WA प्लस WB. तो ओवर हियर मास की जगह वी कैन टेक WA प्लस WB, ठीक है, अपॉन द डेंसिटी. बस यहीं पर प्रॉब्लम आती है. जनरली सब बच्चे क्या करेंगे, 100 लिख देंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस वी टेक 100, बट यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, इसलिए यू कैन मार्क अ स्टार ओवर हियर, क्योंकि ये स्टेप अगर नहीं आया तो गलत हो जाएगा सारा, ठीक है. नाउ यूनिट इज मोल. नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be carcinogenic. The level of contamination was 15 ppm. Now what do you mean by 15 ppm? 15 ppm का मतलब है तुम्हारा WB is 15 grams, right? And what is you have to express in percentage by mass. तो percentage by mass मतलब percentage of solute निकालना है और molality निकालनी है इसकी, right? तो अब वो कैसे करेंगे, सिंपली परसेंटेज तो वैसे ही निकाल लेंगे जैसे मार्क्स की निकालते हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है. WB इज 15 ग्राम्स. व्हाट अबाउट टोटल मास ऑफ सोल्यूशन ओवर है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज 15 ppm दे रखा है. ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन. दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो मास ले रहे हैं दैट इज 1 मिलियन, एंड 1 मिलियन मीन्स 10⁻⁶. तो WB अपॉन टोटल इंटू 100 वो परसेंटेज में आ जाएगा. अब वन थिंग, WA निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल माइनस WB. नो, टोटल 1 मिलियन है, माइनस सोल्यूट माइनस कर दिया, जो बचा दैट इज सॉल्वेंट. बट इसको अगर माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट कम टू 10⁻⁶ ग्राम्स, ठीक है. तो यहाँ से मोलैलिटी वी कैन फाइंड इट आउट. WB बाय MB 1/W into 1000. एवरीथिंग इज गिवन टू यू कैन स्ट्रेट अवे फाइंड इट आउट. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13.
The partial pressure of ethane over a saturated solution containing this much grams of ethane is 1 bar. मतलब ये WB है तुम्हारा और ये पार्शियल प्रेशर इज 1 बार. अब पार्शियल प्रेशर का मतलब तुम्हारा P नॉट है या P है, बट लेट अस सी यहाँ पर हेनरीज लॉ लगेगा तो उसमें P नॉट की जरूरत नहीं है, राइट. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सोल्यूशन कंटेनिंग WB P दे रखा है. दूसरे केस में WB चेंज कर दिया, देन व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस. देयर आर टू केसेस, राइट. तो इसमें M1 इज मास और ये उसका प्रेशर. जब M2 इतना कर दिया तो प्रेशर कितना होगा, उसमें वी विल यूज हेनरीज लॉ. एंड यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ है, जो बुक में किया था वो डिफरेंट है. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ दैट इज नॉट इन द बुक. तो उसमें हम फॉर्मूला लेंगे M इज इक्वल टू K इंटू P. तो M1 इज इक्वल टू K इंटू P1. K इज हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट, उसमें हम 1 नहीं लगाएंगे बिकॉज दैट इज सेम. तो यहाँ से K निकाल लिया हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट से. देन सिमिलरली सेकेंड केस में लगाएंगे तो M2 इज इक्वल टू KP2 एंड यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ K जो वहाँ से निकाला and you can find out the value of P which is in bars. Now coming to next question is 15th question, that is an aqueous solution of 2% non-volatile solute. Now what do you mean by 2%? 2% का मतलब WB है. Solute exerts a pressure of this much bars. अब now again confusion arises, ये pressure कौन सा वाला है, PA है या P0A है. अगेन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया हुआ है. तो आफ्टर एडिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो तुम्हारा प्रेशर आएगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्योर, मतलब वो सोल्यूशन का बन गया, राइट. तो दिस इज सोल्यूशन. तो दिस इज PA नॉट P0A. एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मीन्स एट STP, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. तो इसमें एक चीज़ और तुम्हारा जो है डैट इज यहाँ पर जब हम एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वी कैन टेक, मतलब जो नॉर्मल वाटर का है दैट मीन्स प्योर वाटर. तो P0A कैन बी टेकन एज 1 एटमोसफियर और 1.01 बार. बार इसलिए लिया बिकॉज पहले वाला प्रेशर इज इन बार्स, सो वी कैन टेक इन बार. Now according to Raoult's law, P0A minus PA upon P0A is equals to chi B. Chi B को डाल दिया NB upon NA plus NB. Again neglecting NB in denominator, we can write NB upon NA. इसको खोल दिया WB upon MB, MA upon WA, and you can find out molecular mass in grams per mole. Now going to question number 16, that says heptane and octane form an ideal solution. At this Kelvin, the vapor pressure of the two liquid components are this and this. Now अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये स्टार्टिंग में ही मेंशन कर रखा है कि आइडियल सोल्यूशन है. अब आइडियल सोल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट की बात नहीं होती है बिकॉज बोथ आर वॉलेटाइल. तो राउल्ट्स लॉ पार्ट A लगेगा उसमें. आइडियल सोल्यूशन नो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का चक्कर, राइट. तो इसमें ये जो वेपर प्रेशर दे रखा है ये क्या होगा, P0A एंड P0B होगा दोनों का. डैट मीन्स ऑक्टेन का इतना है P0 और ये हेप्टेन का इतना है P0. What will be the vapor pressure of the mixture of this and this? और जब हम दोनों को मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या होगा. अब अकॉर्डिंग टू जो नो राउल्ट्स का वो क्या कहता है, फास्ट पार्ट, अगर दोनों वॉलेटाइल हैं और दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो P टोटल कहलाएगा, राइट. तो इस केस में सी P0H, H को हमने क्या लिया है हेप्टेन और ऑक्टेन को O ले लिया है हमने. तो P0H इज दिस मच एंड P0O इज दिस मच. ये प्योर वेपर प्रेशर है. Now you have to calculate when you mix both of them, that means P total निकालना है. उसमें WH is given, that is mass of heptane, and mass of octane is given to you. So just substitute in the formula. P total is equal to PH plus PO. PH is P0H chi H. PO is P0A chi O according to Raoult's law. And chi H you can calculate using the formula, and chi O you can find out by using 1 minus chi H. And substitute the values. Everything you know, you can find out P total, and the unit will be same as that of P0A and B, that is kilopascals. Now going to question number 17, which says the vapor pressure of water is this much at this much Kelvin. अब again कौन सा vapor pressure है ये, P0A है या PA है, that you have to decide. अभी इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट नहीं डाला हुआ है. that means this vapor pressure is of pure water. That means it is P0A. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. Now you see, now you have added
प्योर वाटर का इतना था, अब उसमें तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो अब उसका वेपर प्रेशर निकालना है. दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट PA नाउ. तो ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू एनालाइज इट रॉन्गली एंटायर क्वेश्चन विल गेट रॉन्ग. तो दिस इज P0A प्योर का मोलालिटी दिया हुआ है और PA निकालना है और सोल्यूशन. अगेन वी विल यूज राउल्स लॉ सेकेंड पार्ट, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू काई बी का फॉर्मूला डालेंगे. नेग्लेक्टिंग NB इन डिनोमिनेटर, ये तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है. एंड जस्ट गेट दिस फॉर्मूला. नाउ इसमें यू डोंट नो, इसमें से कोई भी वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है, देन व्हाट टू डू. ओनली मोलालिटी इज गिवन टू यू. देन उस केस में वी हैव टू एज्यूम समथिंग. यू नो एज्यूम कैसे करेंगे? यू नो मोलालिटी इज गिवन 1, मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएंगे NB अपॉन WA. अब NB अपॉन WA इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. मोलालिटी इज 1 नो, उसको हम अपॉन 1 भी लिख सकते हैं. अब दिस इम्प्लाइज व्हाट? दिस सेज दैट NB की वैल्यू 1 है और WA की वैल्यू भी 1 kg. NB इज 1 मोल एंड WA इज 1 kg, राइट? तो इसको, इस पॉइंट को आप स्टार लगा देंगे, बिकॉज ये पॉइंट स्टेप अगर नहीं किया तो यहीं पर अटक जाएंगे. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो NB इज दिस मच, WA इज दिस मच. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप. NB की वैल्यू पता चल गई, बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ NA. अब NA कैसे निकालेंगे? वो तो हमने पहले भी करा हुआ है. NA इज इक्वल टू वॉट? WA अपॉन MA. यहाँ से WA तो निकाल ही लिया था हमने. WA की वैल्यू इज हाउ मच? 1 kg और 1000 ग्राम. तो WA को यहाँ डाल दिया. 1000 grams upon 18, that comes out to be 55.5 moles. Directly also you can put Na is equal to 55.5. Just put the value, NB or Na की value, and you will come to know the value of PA in kilopascals, right? Now coming to question number 18, which says calculate the mass of non-volatile solute. अब क्या निकालने का है यहाँ पर? Mass of non-volatile solute. That means WB you have to calculate, right? So उसमें मोलर मास दे रखा है, MB दिया हुआ है. Should be dissolved in 114 grams octane. That means WA is given to you. And to reduce its vapor pressure to 80%. Now what do you mean by vapor pressure to 80%? 80% का मतलब ये है, स्टार्टिंग में अगर आपका P0A था सोल्यूशन एंड फाइनली यू लैंड अप टू 80% ऑफ इट. दैट मीन्स जो फाइनल है, दैट मीन्स सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज 80% ऑफ P0A. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट. इंस्टेड ऑफ PA हम डालेंगे 80% ऑफ P0A ओवर हियर. यू कैन सॉल्व, एवरीथिंग इज गिवन टू यू. अगेन यहाँ तो नेग्लेक्ट कर देंगे. अब तो ये तो सबको आ ही गया होगा कि नेग्लेक्टिंग NB इन डिनोमिनेटर. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सॉल्व करने के बाद यू कैन कैलकुलेट WB इज इक्वल टू 8 ग्राम. कई बुक्स में ये आंसर 10 ग्राम्स आ रहा है. वो क्यों आ रहा है वहाँ पर? बिकॉज दे हैव नॉट नेग्लेक्टेड NB इन डिनोमिनेटर. अगर आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो वो आंसर डैट विल कम आउट टू बी 10 ग्राम्स. बट NCERT में जो बैक में आंसर है डैट इज 8 ग्राम्स. तो दिस इज द राइट मेथड, राइट? इसमें हमें नेग्लेक्ट करना है, तो 8 ग्राम आंसर आएगा. नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन number 19, which says solution containing this much grams of non-volatile solute. Now इसका मतलब क्या है? WB given है exactly 90 grams of water. That means WA is also given. The vapor pressure is this much at it. अब ये कौन सा vapor pressure है तुम्हारा? It is PA और P0A. क्योंकि हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर चुके हैं, तो दिस सोल्यूशन हैज़ टू बी, दिस वेपर प्रेशर हैज़ टू बी PA सोल्यूशन का, राइट? नाउ फर्दर एडिंग 18 ग्राम्स ऑफ वाटर. अब उसी सोल्यूशन में अगर वाटर और ऐड कर दिया तो न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स दिस मच. दैट मीन्स अगेन दिस इज ऑल्सो P ऑफ द सोल्यूशन, नॉट P0. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, MB निकालना है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का मतलब क्या है यहाँ पर? प्योर वाटर at 290 Kelvin. दैट मीन P0A निकालने का है, राइट? नाउ अगेन सी, इसमें दो केस हम लेंगे. फर्स्ट केस में WB 30 ग्राम्स है, WA 90 ग्राम्स है. ये प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है. सेकेंड केस में वो कह रहे थे कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस. पहले 90 ग्राम्स तो ऑलरेडी था, अब 18 ग्राम्स और ऐड कर दिया, तो टोटल WA अब हमारे पास हो गया 108 ग्राम्स. और नाउ प्रेशर बिकम्स दिस मच ऑफ द सोल्यूशन. MB निकालना है, P0A निकालना है. नॉट टेकिंग केस 1, राउल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर. P0A माइनस PA अपॉन P0A काई भी. अगेन देन डूइंग सेम थिंग, नेग्लेक्टिंग NB, एंड ये तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. एक यहाँ पर MB नहीं पता हमें, MB नहीं पता और P0A नहीं पता, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ सिमिलरली फॉर केस 2 वी विल डू सेम
तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला, सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू गेट इक्वेशन नंबर 2. डिवाइडिंग 1 and 2, सब काट वाटने के बाद एवरीथिंग यू गेट दिस मच वैल्यू. सॉल्व करने में यू विल सॉल्व इट एंड P0A comes out to be this much. डिटेल में सब कैलकुलेशन करा हुआ है, यू कैन सी. Now substituting the value of P0A in any of the equations, either 1 or 2, मैंने 1 में डाला है, तो this comes out to be MB का वैल्यू आ रहा है 34 ग्राम पर मोल. Mind over here the unit should be molar mass का unit is always in gram per mole, not in grams. WB का ग्राम में लिखेंगे बट मोलर मास निकालना होगा तो that should be in gram per moles, right? Now going to question number 20. A 5% solution of cane sugar in water. Now 5% solution means what? WB is 5 grams. WA क्या हो जाएगा? 100 minus 5, 95 grams. Has a freezing point of this much. Now अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है. अब ये freezing point TF होगा या T0F होगा? That you have to decide. अब क्योंकि हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर चुके हैं तो दिस फ्रीजिंग पॉइंट शुड बी व्हाट? TF. दैट मीन्स प्योर का नहीं है, ये सोल्यूशन का है, so this should be TF. Calculate the freezing point of 5% glucose. Now this is another case. जो पहला केस था that was cane sugar. सिमिलर पैटर्न पे अब ग्लूकोज लिया हमने 5%, तो इसका लिए भी WB 5 ग्राम्स है एंड WA 95 ग्राम्स है. उसका फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हें दे रखा है इतना है. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है, नो इट इज प्योर वाटर. दैट मीन्स T0F इज गिवन टू यू. निकालना क्या है? सेकेंड वाले केस का तुम्हें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, दैट मीन्स TF निकालना है. सेकेंड वाला केस किसका? जिसमें ग्लूकोज लिया हमने. ग्लूकोज डालने के बाद उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? दैट इज GF. सी yes, again this question is very easy. We can take two cases, case 1, case 2. Case 1 में cane sugar लेंगे, case 2 में glucose लेंगे and formula is not given, तो you should know the formulas. केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11 एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो इतना लंबा चौड़ा निकालने से बेटर है यू शुड रिमेंबर द मोलिकुलर मास. मोलिकुलर मास ऑफ केन शुगर इज 342 ग्राम पर मोल एंड मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम्स पर मोल्स. Now we will take case 1. Depression freezing point delta TF is equals to KFM and delta TF की जगह हम क्या डालेंगे? T0F minus TF. अब यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स दे डू द मिस्टेक और क्या मिस्टेक करते हैं कि T0F minus TF करना है या TF minus T0F. अगर याद नहीं रहे तो यू कैन सी यहाँ पर ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है. तो डिप्रेशन का मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो और हम हमेशा ज़्यादा माइनस कम क्वांटिटी लेंगे. तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है और सोल्यूशन का कम है, तो वी कैन टेक T0F minus TF. तो दिस मिस्टेक शुड नॉट बी देयर. बाकी तो फॉर्मूला में एवरीथिंग इज गिवन टू यू. यहाँ से KF निकाल लेंगे हम एंड सिमिलरली केस 2 में भी ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम. डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. यहाँ पर जो KF निकाला वो यहाँ डालेंगे एंड TF की वैल्यू यू कैन फाइंड इट आउट इन केल्विन एंड टेम्परेचर ऑलरेडी केल्विन में दिया था, तो नो नीड टू कन्वर्ट इट टेम्परेचर इनटू केल्विन. राइट नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 which says two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4. That means दो कंपाउंड है तुम्हारे पास A and B, वो दोनों कंबाइन करके एक AB2 बना रहा है और दूसरा AB4 बना रहा है. तो वी विल टेक टू केसेस, केस 1 एंड केस 2. आगे क्या है? When dissolved in 20 grams of benzene, 1 gram of AB2. That means जब AB2 सोल्यूट लिया हमने 1 ग्राम सोल्यूट WB AB2 का, WB is 1 ग्राम, और डिजॉल्व किया 20 grams of benzene, that means WA, it lowers the freezing point by 2.3 Kelvin. अब ये क्या समझ में ही नहीं आएगा तुम्हें कि it lowers the freezing point by का मतलब क्या है. एक होता है it lower freezing point 2 और एक होता है बाय. 2 का मतलब होता है फाइनल वैल्यू दे दिया तुमने, ठीक है, और लोअर्स बाय मीन्स टोटल डिफरेंस दे रखा है तुमने, ठीक है. तो ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू क्या दिया हुआ है. इतने का डिफरेंस आ रहा है तो इतनी लोअरिंग हो रही है उसकी. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, दिस इज डेल्टा TF. ना 1 ग्राम ऑफ AB4. अब अगर दूसरा सोल्यूट AB4 ले रहे हैं, उसका WB इतना लिया, उतने ही बेंजीन में डाला, तो उसमें तुम्हारी डिप्रेशन आ रहा है. बाय अगेन, बाय का मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इतना आ रहा है, डेल्टा TF. मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट्स आर गिवन टू यू. कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B. दैट मीन्स A और B का मास निकालना है.
तो दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ये बोर्ड्स में आया भी हुआ है एक बार, बट इसमें वेरी लेंथी क्वेश्चन बट वेरी इजी. नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. वी टेक टू केसेस, केस 1 एंड केस 2. लेट्स टेक केस 1. डब्ल्यू ए इज गिवन, डब्ल्यू ए बी 2 ये सल्यूट के लिए लेंगे हम. डेल्टा टी एफ इज गिवन, के एफ इज गिवन. Now case 1 में if you apply the formula delta TF is equals to KFM, everything is given to you except MAB2. तो यहाँ से हम MAB2 निकालेंगे. What is MAB2? Molar mass of AB2 and W is the mass of solute taken, right? तो MAB2 यहाँ से आ जाएगा. Similarly case 2 अप्लाई करेंगे हम, डेल्टा TF सेम फॉर्मूला, बट वहाँ पर क्या होगा, MAB4 लेंगे एंड WAB4 लेंगे. WB इज 1 ग्राम ऑफ एयर, तो यहाँ से MAB4 आ जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ 2 इक्वेशंस यू गॉट. अब उसको हमें जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे. लेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB स्मॉल a एंड लेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैपिटल B स्मॉल b. MAB2 का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ A प्लस ट्वाइस मास ऑफ B. तो मास ऑफ ए प्लस ट्वाइस मास ऑफ ई इज इक्वल टू दिस मच. ये इक्वेशन 1 से आ गया, उसको हमने इक्वेशन 3 दे दिया. और इक्वेशन 2 से हमारा AB4 का था, A प्लस 4B इतना वैल्यू था, वो हमने इक्वेशन 4 दे दिया, राइट. ये था इक्वेशन नंबर 2. MAB4 इज इक्वल टू दिस मच. तो AB4 की जगह व्हाट वी कैन राइट, मास ऑफ A प्लस 4 मास ऑफ B इज इक्वल टू दिस मच. तो वो यहाँ पे है एंड लेट इट बी इक्वेशन 4. नाउ सब्ट्रैक्टिंग दीज 2 इक्वेशन, जैसे मैथ्स में एलिमिनेशन मेथड करते हैं. सब्ट्रैक्टिंग दीज 2, A चला गया, B की वैल्यू निकाल देंगे. Substituting value of B in any of the equation 3 or 4, तो हमारा कैप स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी. That is mass of A and B we will get. Turning to question number 22, which says at this much Kelvin 36 grams of glucose. That means क्या ये 36 grams of glucose means WB is given to you in a liter of its solution. That means volume is given to you 1 liter, has an osmotic pressure of this much. That means pi की वैल्यू given है. If osmotic pressure of solution is this, मतलब यहाँ 2 osmotic, अगेन केस 1 केस 2 लेंगे. पहले केस में जब इतना WB था तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना था. अब ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो गया इट्स सेम, तो व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन. सो देयर आर 2 केसेस टू गो. फर्स्ट केस में हम लेंगे WB गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, pi1 इज गिवन, टेम्परेचर इज गिवन. नेक्स्ट में कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो C2 बोल देंगे हम, पाई इज गिवन एंड टेम्परेचर इज सेम. So K1, case 1 में we will take pi1 is equal to C1 RT. C1 is what? Concentration. Concentration in terms of molarity we will take WB by MB 1 upon V. Everything is given to you. R को छोड़ देते हैं ऐसे ही बिकॉज वो बाद में कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली केस 2 का भी हमने ऐसे सॉल्व कर लिया. यहाँ पर उसको हम C2 ही रहने देते हैं बिकॉज C2 निकालना है हमें. तो लेट इट बी C2 ओनली. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, what we get? You get the value of C2 in molarity. Molar, right? Very easy question. Next question is question number 26. We are doing only numerical part. The theory part you can do on your own. Question 26 says if the density of some lake water is this much and contains this much grams of sodium ion. So density given है इसमें and WB is given to you per kg of water. Per kg of water मतलब solvent का मास से रखा है. That means WA is equal to 1 kg. Calculate the molality of sodium ions. मोलालिटी निकालने का है. ठीक, डेंसिटी गिवन है, WB WA, मोलालिटी निकालेंगे. मॉलिक्यूलर मास में पता होना चाहिए सोडियम का. सोडियम आयन में सोडियम का मास है 23 ग्राम पर मोल. सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला WB by MB into 1 upon WA. अब यहाँ 1000 क्यों नहीं लगाया हमने? वाई? बिकॉज दिस इज इन kgs, तो नो नीड ऑफ 1000. तो क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, 1000 लगा देंगे विदाउट सीइंग वेदर इट इज kg और नॉट. राइट. सो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं तो इसलिए. तो एंड द यूनिट इज मोलर.